Hi, good afternoon, all of you. And here is a beautiful question, which is a mix of PNC and in the recent style of J1. So first, let's read the question. Let x equal to x naught belonging to M2Z is a solution of ax minus xa equals a. So we have this expression given, which is fundamentally a matrix equation. For some a belonging to these four matrices, which is a jumble of 1 and minus 1. Which of the following is possible value of det of x naught? Okay, so out of these four options, let's say if I select 0, 6, 12 and 10. So which of the following among the four values is the possible values for that of x naught? So they have not asked that of x naught, rather they asked the possibilities for that of x naught. Now the first problem that you are facing is what does this represents, right? X naught belonging to M2Z. So they have already defined in the question, as usual in JEE question. M2Z represents 2 cross 2 matrix with integer entry. Okay, so this is a usual way of representing matrix in higher mathematics. Let's say you have M3R. It means we have 3 cross 3 matrix with real entries. If you have M3Z, it means 3 cross 3 matrix with integer entry. Sometimes they'll give M3 0 1, so 3 cross 3 matrix with 0 and 1 only as the entry. And this problem with 0 1 as the entry has been already asked in J Advanced before. So I tried to give you similar exposure. It's better you try this question, so before you see the solution. Okay, so let me solve the question. The first thing we have noticed is x naught is a 2 cross 2 matrix. So x naught can be written as something like ABCD form. Now one blind way of solving this question is I'll take x naught as ABCD and I'll start finding solutions by taking the possibilities value of it, each possible value of it. तो हम क्या करेंगे, सपोज a का वैल्यू अगर हम फर्स्ट वाला लेंगे तो फिर उसको डालेंगे उसमें 1 1 -1 or let's say ABCD minus, again I'll take x as ABCD to start with, and then we have 1 1 -1 and this would be equal to a, which is 1 1 -1 So clearly we have 4 unknown ABCD which belongs to integer और मेरे पास 4 इक्वेशन बनेगा, तो उसको सॉल्व करके हम ABCD निकाल सकते हैं. Since ABCD is integer, so maybe that will give some possibilities of det of x naught, क्योंकि det of x naught क्या आने वाला है, ये AD माइनस BC आएगा. ठीक है, ये वैल्यू आएगा. तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन के हेल्प से हम AD माइनस BC का वैल्यू पॉसिबिलिटी चेक करेंगे. सिमिलरली आई अगेन ट्राई फॉर द सेकेंड ऑप्शन. तो हमको सेम प्रोसेस रिपीट करना होगा. इंस्टेड ऑफ दिस मैट्रिक्स आई ट्राई विद द सेकेंड मैट्रिक्स, राइट, एंड देन अगेन आई हैव टू गो विद द थर्ड मैट्रिक्स, एंड अगेन वी नीड टू रिपीट द सेम लॉजिक विद द फोर्थ मैट्रिक्स. तो ऐसे हमको चारों मैट्रिक्स के साथ करना होगा. अब क्लियरली इफ आई स्टार्ट डूइंग दिस फॉर ऑल द 4 मैट्रिक्स, टाइम विल नॉट बी एनफ. Okay, even if you are taking on the average 3 minutes for one calculation, it will take 12 minutes, so which is not worth. And possibly if they'll give this question, ये 4 marks में होगा. तो क्या आइडिया है? अब देखो आइडिया यहाँ से है, and this is very important idea. The moment you are seeing ax minus xa kind of a structure, तो एक बहुत ही simple idea can come into picture. Is there is a property of trace, because similar question we usually do in the classroom. Trace of matrix AB is same as trace of matrix BA. In one of my matrix lecture which you can find in playlist, हमने ये समझाया है और इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन दिया है. ठीक है, मैं डिटेल करके वहाँ समझाया हूँ. जो इन जनरल AB और BA मैट्रिक्स सेम नहीं होते हैं क्योंकि दे आर नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन इसका ट्रेस मैजिकली सेम हो जाएगा. वो आप A को 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 लेके भी चेक कर सकते हो. ऑल्दो देयर इज ए स्पेशल प्रूफ ऑल्सो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो सेम हो जाएगा भले ही मैट्रिक्स का इंडिविजुअल एलिमेंट डिफर. ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो फिर क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखो, इफ आई टेक ट्रेस ऑन बोथ साइड, सो ट्रेस ऑफ एक्स माइनस ट्रेस ऑफ एक्स इक्वल से, अब ट्रेस तो डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इसको हम ट्रेस ऑफ ए एक्स माइनस ट्रेस ऑफ एक्स से लिख सकते हैं इक्वल्स ट्रेस ऑफ. व्हाट एडवांटेज आई गॉट, सिंस आई नो फॉर 2 मैट्रिक्स ए एंड एक्स, ax and xa इज नॉट इक्वल इन जनरल बट देयर ट्रेस विल बी इक्वल. तो ये तो 0 हो गया. इसका मतलब इफ दिस इक्वेशन हैज टू बी सेटिस्फाई, इट विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाई इफ एंड ओनली इफ ट्रेस ऑफ a इज 0. ओके, सो देयर कैन नॉट बी एनी अदर ए जिसका ट्रेस
नॉन जीरो हो और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो अब तो मज़ा आ गया। अब यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ए का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। यहाँ तो ट्रेस जीरो है, सो दिस इज वन ऑफ द वैलिड मैट्रिक्स ए इफ़ आई वांट सम सॉल्यूशन फॉर एक्स नॉट, राइट। ये वैलिड है नहीं क्योंकि इसका ट्रेस टू है, तो ये तो आएगा ही नहीं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। सिमिलरली इसका ट्रेस -2 है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रिजेक्टेड। सिमिलरली द फोर्थ केस ट्रेस इज 2, सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हमको क्या फ़ायदा मिला, जो हमको इंडिविजुअली हर एक मैट्रिक्स के साथ ये ऑपरेशंस नहीं करना होगा, एंड जस्ट आई हैव टू डू फॉर वन पॉसिबिलिटीज। इट मीन्स जस्ट मैं इसको सॉल्व करूँगा एंड आई विल टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी, क्योंकि सेकेंड थर्ड फोर्थ अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे यू विल गेट स्लैप्ड, इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगा। अगर तुम सेकेंड मैट्रिक्स को रखो और फिर से ये करो और 4 इक्वेशन डेवलप करो तो वहाँ 0 = 2 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई मैट्रिक्स ए पॉसिबल ही नहीं है जिसका ट्रेस नॉन जीरो हो और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। सिमिलरली सेम रीजनिंग गोज फॉर थर्ड एंड फोर्थ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग था। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अब तो ये पता चला जो ठीक है, आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस ऑफ मैट्रिक्स से सिर्फ एक ही ऑप्शन लेजिटिमेट सॉल्यूशन दे सकता है, बट विच सॉल्यूशन इट विल गिव। तो अब तो मुझे इसको सॉल्व करना होगा। सो आई विल मल्टीप्लाई। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट में क्या आ गया आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इंटू दिस विल गिव a + c। सो इफ विल जस्ट राइट दैट एक्सप्रेशन, तो यहाँ से जो अपने पास आया वो दैट विल गिव a + c एज फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड इज b + d -a - c -b - d। लेट मी चेक, a + c b + d -a - c -b, और इसका प्रोडक्ट क्या आ गया a - b, देख सकते हो माइनस ऑफ a - b, देन वी हैव अगेन c - d, a - b एंड c - d, एंड दिस इक्वल्स ये चीज़ जो है, एंड दिस इक्वल्स 1 1 -1 -1। अब इफ आई सब्ट्रैक्ट एलिमेंट बाय एलिमेंट, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ से क्या गया a + c और a - b को सब्ट्रैक्ट किया तो b + c दिखने को मिला। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, b + d - b, दैट इज 2b। सो नेक्स्ट बिकम this minus this is 2b plus d minus a, राइट। नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या पॉसिबिलिटी आ जा रहा है, 2c - 2c minus a plus d, and the last element is -b - c, ठीक है, ओके d जाएगा, and that equals 1 1 -1 -1। now of course I'll compare this, तो इस चारों को if I'll compare by simple comparison, what I am getting is b + c का वैल्यू इज 1, राइट। और फिर यहाँ से 2b + d - a, ये भी 1 आया, 2c + a - d, दैट्स ऑल्सो 1, और b + c 1 आया। रिमेंबर a b c d जो है वो इंटीजर है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, पॉसिबिलिटीज फॉर x नॉट, डेटा ऑफ x नॉट। डेटा ऑफ x नॉट क्या होने वाला है, डेटा ऑफ a b c d which is AD - BC। अब मुझे क्या करना होगा, अब तुम D का जो वैल्यूज़ है, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो, या हर एक को तुम A और B के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो हम A और B के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज ऑलरेडी A एंड D वी कैन राइट एज 1 + a - 2b, b यहाँ से दिखा, एंड a - b होल स्क्वायर, राइट। हाँ, सो नाउ बेसिकली वी कैन फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, a + a² - 2ab - b² को हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, अब वो सिंपल है, क्योंकि a² - 2ab और +b² को एक साइड रखा और a - b को एक साइड, सो दिस बिकम्स a - b होल स्क्वायर। सो फाइनली वी गॉट a - b इंटू 1 + a - b। सो द टेक अवे इज डेटा ऑफ x नॉट जो आया वो आया a - b इंटू a - b + 1। अब देखो, अब क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल है, सिंस a और b इंटीजर है, सिंस a और b इंटीजर है, तो ये क्या गया, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, क्योंकि अगर a - b कुछ इंटीजर आएगा, सपोज अल्फा, तो ये क्या हो गया, अल्फा इंटू अल्फा + 1। इट मीन्स डेटा ऑफ x नॉट मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है।
वो कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। चलो अब चेक करते हैं। 0 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम अगर a इक्वल टू बी रख दें तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1, तो वो तो पॉसिबल है। 6 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर a माइनस बी 2 हो जाए तो a माइनस बी प्लस 1 जो होगा वो 3 हो जाएगा। अगर ये क्वांटिटी 2 हो जाए तो ये 3 हो जाएगा। सो 2 इंटू 3 इज प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसिक्यूटिव, तो ये भी पॉसिबल है। 12 पॉसिबल है, 3 इंटू 4 से आएगा। 10 पॉसिबल है, अब 10 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 इंटू 3 6 देगा, 3 इंटू 4 जो होगा वो 12 दे देगा। तो 10 तो 2 इंटू 5 होगा, तो वो कंसिक्यूटिव नहीं होगा, उसका गैप तो 2 के गैप में आ गया, ठीक है। तो 10 इज द ओनली आंसर विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 0, 6 एंड 12। टेक अवेज, आप देखो कैसे एक बेसिक मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को एक बहुत ही फंडामेंटल वे में पॉसिबिलिटीज़ मिले जाएंगे। और इस टाइप का जो फैशन है क्वेश्चंस का वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, खास के जी एडवांस के प्रॉब्लम्स। ओके, यूजुअली आप बुक्स और सोर्सेज में ये नहीं मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन लाइक CSIR हुआ या फिर IISc बेंगलोर का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, अगर उसके पेपर्स देखोगे तो कुछ इस टाइप में आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है, ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। एनीवे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको सोर्स पता नहीं होगा, सो द पॉइंट इज आप क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व करो, लास्ट 5 years जे एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियोस। तो यहाँ पे आपको मैं डेली 2-3 अच्छे प्रॉब्लम्स दूंगा जो आपको इनिशिएट करेंगे फॉर